میں آپ کو بتائیں کہ بجلی کے بلوں میں اضافی ٹیکسز اور ہائی کورٹ کا درخواست گزاروں کو نیپرا سے رجوع کرنے کا حکم ہے۔ جسٹس علی باقر نجوی نے 400 سے زائد درخواستیں نپٹا دی ہیں۔ تو آپ کو اس وقت اپڈیٹ کر رہے ہیں، بجلی کے بلوں میں اضافی ٹیکسز ہیں اور ہائی کورٹ کا درخواست گزاروں کو نیپرا سے رجوع کرنے کا حکم ہے۔ جسٹس علی باقر نجوی نے 400 سے زائد درخواستیں نپٹا دی ہیں۔ ایک طرف دن بدن مہنگائی بڑھتی جا رہی ہے، دوسری جانب بجلی کے بلوں میں اضافہ ہے اور اس حوالے سے ہائی کورٹ کا درخواست گزاروں کو نیپرا سے رجوع کرنے کا حکم سامنے آیا ہے۔ جسٹس علی باقر نجوی نے 400 سے زائد درخواستیں نمٹا دی ہیں۔ بجلی کے بلوں میں اضافی ٹیکسز کے حوالے سے ہائی کورٹ میں درخواست گزاروں نے اپیل کی تھی اور درخواست گزاروں کو نیپرا سے رجوع کرنے کا حکم جاری کیا گیا ہے۔ جسٹس علی باقر نجوی نے 400 سے زائد درخواستیں نمٹا دی ہیں۔ 400 سے زائد درخواست گزاروں نے ہائی کورٹ سے رجوع کیا تھا۔ بجلی کے بلوں میں بیجا اضافے کے خلاف درخواست گزاروں کی اپیل پر ہائی کورٹ نے درخواست گزاروں کو نیپرا سے رجوع کرنے کا حکم جاری کیا ہے۔ مسلم لیگ نون کے صدر شہباز شریف نے سینیٹر اسحاق ڈار کو پارٹی کے الیکشن سیل کا چیئرمین مقرر کر دیا۔ مریم اورنگزیب نے کہا کہ اسحاق ڈار کو الیکشن سیل کا سربراہ بنانے سے پارٹی کی انتخابات سے متعلق سرگرمیوں میں مزید تیزی آئے گی۔ نون لیگ کے سیکرٹری جنرل احسن اقبال نے نوٹیفیکیشن بھی جاری کر دیا ہے۔ مسلم لیگ نون کے صدر شہباز شریف نے سینیٹر اسحاق ڈار کو پارٹی کے الیکشن سیل کا چیئرمین مقرر کر دیا ہے۔ تفصیلات کے لیے بات کرتے ہیں ڈیپٹی بیورو چیف حسن رضا سے۔ حسن، اپڈیٹ کیجیے گا۔ دیکھیں، پاکستان مسلم لیگ نون کے صدر میاں محمد شہباز شریف نے سینیٹر اسحاق ڈار کو پارٹی کے الیکشن سیل کا چیئرمین مقرر کیا ہے۔ سینیٹر اسحاق ڈار پارلیمنٹ سے منظور شدہ الیکشن ایکٹ 2017 کو تیار کرنے والی جو پارلیمانی کمیٹی تھی اس کے بھی سربراہ مقرر کیے گئے تھے اور انہوں نے الیکشن ایکٹ 2017 کو تیار کیا تھا۔ اس حوالے سے مرکزی ترجمان مسلم لیگ نون مریم اورنگزیب کا کہنا ہے کہ پارٹی سیکرٹری جنرل احسن اقبال نے اسحاق ڈار کو پارٹی کے الیکشن سیل کا چیئرمین مقرر کرنے کا جہاں نوٹیفکیشن جاری کیا ہے، وہاں سینیٹر اسحاق ڈار کو الیکشن سیل کا سربراہ بنانے سے مسلم لیگ نون کے انتخابی سرگرمیوں میں جہاں پر تیزی آئے گی، وہاں پارٹی کے ٹکٹ کے لیے درخواستوں کی وصولی، انتخابی ضابطوں کی نگرانی سمیت تمام متعلقہ امور کو تیزی سے مکمل کیا جائے۔ آپ کا بہت شکریہ حسن رضا۔ پنجاب فوڈ اتھارٹی کا صحت دشمن عناصر کے خلاف کریک ڈاؤن جاری ہے۔ 6 ماہ میں 971 فوڈ پوائنٹس بند، 306 مقدمات درج کیے گئے ہیں اور 2,85,900 فوڈ پوائنٹس کی چیکنگ کی گئی ہے اور 32,280 پوائنٹس کو جرمانے بھی عائد کیے گئے ہیں۔ مزید بہتری کے لیے 1,86,670 کو اصلاحی بھی جاری کیے گئے ہیں۔ تفصیلات جانتے ہیں عمران اکبر سے۔ عمران، آگاہ کیجیے۔ ہاں جی، بالکل، اس وقت فوڈ اتھارٹی جو ہے وہ نوٹسز جاری کر رہی ہے اور کریک ڈاؤن بھی کر رہی ہے اور اسی سلسلے میں جو ہے فوڈ اتھارٹی کی ٹیموں نے باقاعدہ طور پر جو ہے کریک ڈاؤن کیا ہے۔ 971 فوڈ پوائنٹس بند کیے گئے ہیں، 306 مقدمات درج کیے گئے ہیں۔ 6 ماہ میں 2,85,900 فوڈ پوائنٹس کی چیکنگ کی گئی۔ اس کے بدلے میں 32,280 پوائنٹس کو جرمانے کیے گئے۔ مزید بہتری کے لیے 1,86,670 کو اصلاحی نوٹسز بھی جاری کیے گئے۔ قوانین کے سنگین خلاف ورزیوں پر 971 پوائنٹس کی پروڈکشن بند، جبکہ 306 افراد کے خلاف مقدمات درج کروائے گئے ہیں۔ نجی فوڈ اتھارٹی راجہ جنگیر انور کا کہنا ہے کہ اشیاء کے معیار کی تفصیلی جانچ کے لیے 7,650 سے زائد فوڈ سیمپل لیبارٹری ٹیسٹ کے لیے بھجوائے گئے۔ سرپرائز چیکنگ کے ساتھ ساتھ ہر قسم کے خوراک کو سالانہ چیکنگ شیڈول کے مطابق بھی چیک کیا جا رہا ہے۔ معیاری خوراک کی یقینی فراہمی کے لیے روزانہ کی بنیاد پر کارروائی جاری ہے۔ خوراک کی تیاری سے تقسیم تک تمام مراحل کی کڑی نگرانی کی جا رہی ہے۔ اس وجہ سے راجہ جہانگیر انور کا یہ بھی کہنا ہے کہ ممنوعہ یا نان فوڈ گریڈ اضافہ خوراک میں استعمال سنگین جرم ہے۔ شہری لیبل پڑھنے کی عادت بنائیں، خوراک کے چناؤ میں محتاط رہیں، ہمیشہ غذائیت سے بھرپور خوراک کا انتخاب کریں اور اسی سلسلے میں اگر کہیں پہ بھی جو ہے کہیں پہ بھی کسی کو شکایت ہو تو فوری طور پر فوڈ اتھارٹی کے ہیڈ آفس سے رابطہ آپ کا بہت شکریہ عمران۔ سرکاری محکموں کے ڈیلی ویجز ملازمین کے لیے اچھی خبر ہے۔ محکمہ خزانہ نے کم سے کم 32,000 روپے ماہانہ تنخواہ کا نوٹیفیکیشن جاری کر دیا ہے۔ اس سے قبل نجی شعبے کے حوالے سے تنخواہوں میں اضافے کا نوٹیفیکیشن جاری ہوا تھا۔ عاطف پرویز سے مزید تفصیلات لیتے ہیں۔ عاطف، اس نوٹیفیکیشن کے حوالے سے اپڈیٹ کیجیے۔ جی، آخرکار سرکاری محکموں میں کام کرنے والے ڈیلی ویجز کی بھی سنی گئی ہے اور اب محکمہ خزانہ کی جانب سے
नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है, जिसके मुताबिक सरकारी महकमों में काम करने वाले डेली वेजेस की जो कम से कम तनख्वाह है वो 32,000 होगी। इस हवाले से पहले निजी शोबे के लिए नोटिफिकेशन महकमा लेबर ने जारी किया था। तमाम सरकारी महकमों के जो मुलाजमीन हैं उनके लिए नोटिफिकेशन कोई जारी नहीं हुआ था, लेकिन अब महकमा खजाना ने मुलाजमीन के मुतालबे पर नोटिफिकेशन जारी कर दिया है और इसके मुताबिक अब कम से कम डेली वेजेस की जो तनख्वाह है वो 32,000 होगी। उसके साथ साथ जो स्किल्ड वर्कर्स हैं उनकी तनख्वाहों के लिए अलग से जो तनख्वाहों का शेड्यूल जारी किया गया है और ये भी कह दिया गया है कि तमाम सरकारी महकमे जो हैं वो इस नोटिफिकेशन को फॉलो करने के पाबंद होंगे। हजारों जो सरकारी जो मुलाजमीन हैं जो डेली वेजेस थे उनको इससे फायदा होगा और मुलाजमीन की जानिब से भी ये मुतालबा किया गया है कि तमाम शोबाजात जो है इस नोटिफिकेशन पर फौरी तौर पर अमल दरामद करें। ठीक है आतिफ, बहुत शुक्रिया। कस्टम्स के एंटी स्मगलिंग ऑर्गेनाइजेशन के ड्राइवर्स कहां गए? स्मगलिंग की रोकथाम के लिए बनाए गए स्क्वाड में गाड़ियां चलाने के लिए ड्राइवर्स मौजूद नहीं। स्मगलिंग की रोकथाम के लिए 6 स्क्वाड तश्कील दिए गए थे। ज़राए के मुताबिक ज़्यादातर ड्राइवर ऑफिसर्स के घरों में गैर कानूनी ड्यूटी सर अंजाम दे रहे हैं। सिपाही असगर, साजिद अली और मोहम्मद रशद को ड्राइविंग की जिम्मेदारियां सौंप दी गईं। स्क्वाड में लॉर्ड डिविजनल क्लर्क को भी शामिल कर लिया गया। तफसीलात के लिए बात करते हैं राहील अली से। राहील, अपडेट करें। जी, वफाकी हुकूमत की जानिब से कस्टम को हिदायत जारी की गई है कि स्मगलिंग की रोकथाम के लिए खुसूसी इक़दाम किए जाए, मगर दिलचस्प और हैरान कुन बात यह है कि स्मगलिंग का जो स्क्वाड तश्कील दिया गया उसमें सरकारी तौर पर कोई ड्राइवर ही मौजूद नहीं है जिन्होंने स्क्वाड को लेकर जाना है, गाड़ियाँ चलानी है। जो ऑपरेशन सिस्टम के लिए स्पेशल जो है वो 20 ड्राइवर जो है वो ऑफिशियल जो है वो मौजूद है, मगर जो स्क्वाड तश्कील दिए गए हैं स्मगलिंग रोकने के लिए इसमें कोई भी जो प्रोफेशनल ड्राइवर है वो भर्ती नहीं किया गया। तो 3 स्क्वाड बनाए गए, उसमें सिपाही असगर, बंदर, साजिद अली और मोहम्मद अशरफ को ड्राइविंग की जिम्मेदारियां दी गई हैं, जबकि क्लर्क को भी जो है वो इस स्क्वाड में शामिल कर लिया गया। जबकि 3 जो स्क्वाड बनाए गए उसमें ड्राइवर ही नहीं रखे गए, सिर्फ सिपाही और इंस्पेक्टर जो है वो तैनात किए गए। ज़ाय का कहना यह है कि ज्यादातर ड्राइवर जो है वो असिस्टेंट कलेक्टर, डिप्टी कलेक्टर, कलेक्टर तक के जो अफसरान हैं उनके घरों में जो है वो काम कर रहे हैं, जबकि कानूनी तौर पर ऑपरेशन जो है वो सिर्फ ड्यूटीज जो है वो ड्राइवर से अंजाम दे सकते हैं। किसी भी असिस्टेंट डायरेक्टर, डिप्टी कलेक्टर के पास जो है वो इख्तियारात नहीं है, इवन के एडिशनल कलेक्टर भी जो है वो अपने साथ ड्राइवर नहीं रख सकता। लेकिन जो सरकारी तौर पर ड्राइवर मौजूद होते हैं वो इन अफसरान के घरों में काम करते हैं। और जो एंटी स्मगलिंग स्क्वाड है जिसका काम यही है कि उन्होंने जाके सड़कों पर नाके लगाने हैं और इसके अलावा स्मगलिंग का सामान जो है वो पकड़ना है, उनके स्क्वाड में ड्राइवर से शामिल नहीं है। और यही वजह है कि देखा ये गया कि जो ड्राइवर्स को रखा नहीं जाता, सिर्फ सिपाहियों को और इंस्पेक्टर्स को जो है वो भिजवा दिया जाता है और ड्राइवर जो है वो आला अफसरान के घरों में जो है उनके जाती ड्राइवर की हैसियत से जो है वो काम करते हैं। अब जो 6 स्क्वाड तश्कील दी गई है उसमें कोई भी जो प्रोफेशनल ड्राइवर भर्ती हुआ था इस ऑपरेशन सिस्टम के लिए वो मौजूद नहीं है। जी ठीक है राहील, बहुत शुक्रिया। कमिश्नर लाहौर मोहम्मद अली रंधावा की ज़ेर सदारत तरक्याती प्रोजेक्ट से मुतल्लिक इजलास। कमिश्नर की शाहदरा से बाबू साबू रोड तक दरख्त लगाने की हिदायत जारी। तरक्याती प्रोजेक्ट्स नवंबर तक मुकम्मल करने का हुक्म भी जारी। कमिश्नर ने कहा कि बदामी बाग लारी अड्डे का रीस्ट्रक्चरिंग मुजव्वज़ा प्लान हतमी मरहले में है। अहम इजलास के हवाले से आपको अपडेट किया जा रहा है। कमिश्नर लाहौर मोहम्मद अली रंधावा की ज़ेर सदारत तरक्याती प्रोजेक्ट से मुतल्लिक इजलास हुआ है। कमिश्नर की शाहदरा से बाबू साबू रोड तक दरख्त लगाने की हिदायत जारी। तरक्याती प्रोजेक्ट्स नवंबर में मुकम्मल करने का हुक्म जारी। कमिश्नर ने कहा कि बदामी बाग लारी अड्डे का रीस्ट्रक्चरिंग मुजव्वज़ा प्लान हतमी मरहले में शामिल है। इजलास के मनाज़िर भी टेलीविजन स्क्रीन पर आप देख सकते हैं कि कमिश्नर लाहौर की ज़ेर सदारत अहम इजलास हुआ है। तफसीलात जानते हैं इमरान अकबर से। इमरान, इजलास का अहवाल बताइए। जी बिल्कुल, कमिश्नर लाहौर मोहम्मद अली रंधावा की सदारत तरक्याती प्रोजेक्ट्स पर PHA वर्क और लारी अड्डा के हवाले से इजलास हुआ है। इस हवाले से शाहदरा से बाबू साबू पूरे रोड पर दरख्त लगाए जाए और भारी हॉर्टिकल वर्क की हदायत की गई है। कमिश्नर लाहौर का यह कहना है इजलास में कि लाहौर की जारी अक्सर तरक्याती प्रोजेक्ट्स नवंबर में ही मुकम्मल हो जाएंगे, जबकि PHA नवंबर के पहले हफ्ते और दूसरे हफ्ते में मुकम्मल होने वाले प्रोजेक्ट्स पर हॉर्टिकल्चर वर्क शुरू करे और PHA फौरी हॉर्टिकल्चर वर्क शुरू करने के साथ साथ मनसूबों में मरहलावार जगह मुहैया करे। बदामी बाग लारी अड्डे का रीस्ट्रक्चरिंग मुजव्वज़ा प्लान हतमी मरहले में है, जबकि लारी अड्डा बाग से रोजाना 70,000 से 1 लाख मुसाफिर सफर करते हैं। लारी अड्डे की रीस्ट्रक्चरिंग से सफाई, मुसाफिरों की सहूलियात और मुनज़्ज़म पार्किंग के स्टैंड्स को कायम किया जाएगा। कमिश्नर लाहौर के इजलास में डायरेक्टर डेवलपमेंट जावेद चौहान, चीफ इंजीनियर इसरार सईद समेत LDA, PHA, वासा, नेस्पैक के अफसरान ने शिरकत की। कमिश्नर लाहौर का कहना है कि 144 के तहत इंसदाद स्मोकली रावी एरिया से मट्टी व रेत ले जाने वाली ट्रॉलियों पर आज से क्रैकडाउन शुरू किया जाएगा, जबकि जिला इस्लामिया लाहौर और ट्रैफिक पुलिस की टीमें रावी एरिया में नाके लगाएंगी। जी आपका शुक्रिया इमरान।
महकमा स्कूल एजुकेशन का एक और मंसूबा अधूरा, पेंशन केसेस ऑनलाइन करने का मंसूबा 1.5 साल बाद भी मुकम्मल नाफिज ना हो सका। पंजाब के तमाम 3.5 लाख असातिज़ा के केसेस को ऑनलाइन करने का ऐलान किया गया था। 1.5 साल बाद सिर्फ 5 अजला के ही केसेस ऑनलाइन हो सके हैं। आतिफ परवेज से मज़ीद जानते हैं। जी आतिफ, बताइए। स्कूल एजुकेशन की जानिब से मंसूबों का ऐलान तो किया जाता है, लेकिन ये मंसूबे वक्त पर मुकम्मल नहीं होते। एक और मंसूबा जो है वो महकमा स्कूल एजुकेशन का, वो इल्तवा का शिकार है और मुकम्मल नहीं हो सका। 1.5 साल कबल जिस मंसूबे का ऐलान किया गया था कि जो स्कूलों के असातिज़ा हैं इनकी पेंशन के केसेस जो है वो ऑनलाइन डील किए जाएंगे, लेकिन 1.5 साल बाद भी ये मंसूबा जो है इल्तवा का शिकार है और सिर्फ 5 अजला में ही इस मंसूबे को नाफिज किया जा सका है। और असातिज़ा को मैनुअल केसेस भिजवाने से जो बड़ी मुश्किलात का सामना रहा है, तो अब महकमा स्कूल एजुकेशन का ये कहना है कि जिन 5 अजला में ये केसेस ऑनलाइन निज़ाम नाफिज किया गया है, वहाँ से कोई भी मैनुअल केस जो है वो महकमा स्कूल एजुकेशन को ना भिजवाया जाए। इनमें गुजरात है, अटक समेत जो मंडी बहाउद्दीन के समेत 5 जिला से मैनुअल केसेस को महकमा स्कूल एजुकेशन ने मना कर दिया और पाबंदी लगा दी और कहा गया है कि अब सिर्फ और सिर्फ ऑनलाइन केसेस को ही एंटरटेन किया जाएगा। जी ठीक है आतिफ, बहुत शुक्रिया। DC लाहौर राफ़ा हैदर की हिदायत पर MCL का तजावुज़ात के खिलाफ एक्शन, रिंग रोड इंटरचेंज बरकी रोड और ग्रीन सिटी के मुल्हिका इलाकों में ऑपरेशन, सरकारी अराजी पर 10 से ज़ायद मकामात से गैर कानूनी तौर पर कायम झुग्गियाँ और मलबा हटा दिया। 10 ट्रक सामान भी कब्जे में लिया। तफसीलात के लिए बात करते हैं इमरान अकबर से। इमरान, आगाह कीजिएगा। बड़ा ऑपरेशन किया गया है सुबह और ऑपरेशन में रेगुलेशन विंग, हेडक्वार्टर, शालीमार, गुजरात और अजीजवती जोन टीमों की 6 किलोमीटर इलाके में बड़ी कार्रवाई सामने आई है। रिंग रोड के अतराफ में बरकी रोड और ग्रीन सिटी के मुल्हिका इलाकों में तजावुज़ात के खिलाफ ऑपरेशन किया गया है। चीफ ऑफिसर कॉरपोरेशन इकबाल फरीद की निगरानी में MOR हारिस जलील ने टीमों से समेत फील्ड में मौजूद रहे हैं। ऑपरेशन में 100 से ज़ायद थरे, वैम्प और शेड मुस्मार किए गए हैं। हथौड़ों का इस्तेमाल किया गया है, हैवी मशीनरी का इस्तेमाल किया गया है। सरकारी अराजी पर 10 से ज़ायद मकामात से गैर कानूनी तौर पर कायम झुग्गियाँ और मलबा हटा दिया गया है। MCL टीम ने कार्रवाई के दौरान 10 ट्रक सामान कब्जे में लेकर स्टोर में जमा करवाया है। इसी सिलसिले में एडमिनिस्ट्रेटर MCL राफ़ा हैदर का कहना है कि तजावुज़ात के खिलाफ ऑपरेशन भरपूर तरीके से जारी है। तजावुज़ात अवाम की रोज़मर्रा ज़िंदगी में मुश्किलात का बाइस बनते हैं, ट्रैफिक रवानी में भी मुश्किलात का बाइस बनते हैं। MCL अफसरान तजावुज़ात की फील्ड में मुतहरिक हैं। जिन मकामात पर तजावुज़ात का खात्मा कर रहे हैं, यकीनी बनाएंगे वहाँ दोबारा कायम नहीं हो सकेंगे। जी ठीक है इमरान, बहुत शुक्रिया। परवेज़ इलाही को मजिस्ट्रेट की जानिब से मुकदमे से डिस्चार्ज करने के फैसले को मुअत्तल करने का मामला है। परवेज़ इलाही की सिंगल बेंच के फैसले के खिलाफ दायर इंट्रा कोर्ट अपील समाअत के लिए मुकर्रर है और हाई कोर्ट के जस्टिस शहराम सरवर चौधरी की सरबराही में 2 रुकनी बेंच 7 नवंबर को समाअत करेगा। तो आपको अपडेट कर रहे हैं, परवेज़ इलाही को मजिस्ट्रेट की जानिब से मुकदमे से डिस्चार्ज करने के फैसले को मुअत्तल करने का यह मामला है और परवेज़ इलाही की सिंगल बेंच के फैसले के खिलाफ दायर इंट्रा कोर्ट अपील समाअत के लिए मुकर्रर भी है और हाई कोर्ट के जस्टिस शहराम सरवर चौधरी की सरबराही में 2 रुकनी बेंच 7 नवंबर को समाअत करेगा। आपको बताएं कि निगरान सूबाई वज़ीर सनअत व तिजारत SM तनवीर की ज़ेर सदारत इजलास हुआ है। कारोबारी सहूलत मराकज़ पर पेशरफ्त का जायज़ा लिया गया है। सूबाई वज़ीर सनअत व तिजारत की मराकज़ की वर्किंग के हवाले से SOPs बनाने की हिदायत भी की गई हैं। अहम इजलास है, उस हवाले से आपको बताया जा रहा है कि निगरान सूबाई वज़ीर सनअत व तिजारत SM तनवीर की ज़ेर सदारत इजलास हुआ है। इजलास का अहवाल जानते हैं अब्दुल कादिर से। अब्दुल कादिर, आगाह कीजिए। आज बिल्कुल बिजनेस फैसिलिटेशन सेंटर पर पेशरफ्त के हवाले से जो है जायजा इजलास हुआ, जिसकी सदारत सूबाई वज़ीर सनअत व तिजारत SM तनवीर ने की। इस मौके पर सेक्रेटरी सनअत व तिजारत एहसान भुट्टा की बिजनेस फैसिलिटेशन सेंटर पर जो है तफसीली ब्रीफिंग दी गई और पेशरफ्त के हवाले से आगाह किया गया। बिजनेस फैसिलिटेशन सेंटर पंजाब स्मॉल इंडस्ट्रीज कॉर्पोरेशन के हेड ऑफिस अल्फला बिल्डिंग के ग्राउंड फ्लोर पर बनेगा। सूबाई वज़ीर सनअत व तिजारत का कहना था कि वज़ीर आला पंजाब माह दिसंबर में बिजनेस फैसिलिटेशन सेंटर का इफ्तिताह करेंगे। बिजनेस फैसिलिटेशन सेंटर के हवाले से मुतल्लिका महकमों के फोकल पर्सन जो है मुकर्रर कर दिए गए हैं। सरमायाकारों को नए कारखाने लगाने के लिए NOC और दीगर सहूलियात एक छत तले जो है वो फराहम की जाएंगी और इस हवाले से उनका ये भी कहना था
कि पंजाब की निगरान हुकूमत सूबे में सरमायाकारों के फ़रोग़ के लिए कोशां है और सूबाई वज़ीर सनअत और तिजारत की बिजनेस फैसिलिटेशन सेंटर की वर्किंग के हवाले से SOP तय करने की हदायत दी गई है। इजलास में एडिशनल सेक्रेटरी सनअत और तिजारत, डिप्टी मैनेजिंग डायरेक्टर तहसीक और मुतलका महकमों के फोकल पर्सन भी मौजूद थे। अब्दुल कादिर, इसमें मेन स्टेक होल्डर ताजर बरादरी है, तो क्या इस इजलास में ताजर बरादरी के नुमाइंदगान को भी मदऊ किया गया? ये जो इसका जायजा इजलास था, इस हवाले से इजलास में ये भी तय पाया है कि तमाम जो सूबे के चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री है, जिसमें लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री और दीगर जिले जो चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री हैं, उनके नुमाइंदगान को भी जो है वो शामिल किया जाएगा और इस हवाले से जो है उनसे भी मुशावरत की जाएगी कि बिजनेस फैसिलिटेशन सेंटर की बेहतरी के लिए और जो सरमायाकार हैं उनकी सहूलत के लिए क्या क्या इकदाम किए जा सकते हैं और उनसे भी मुख्तलिफ जो है वो तजावीज़ तलब की जाएंगी। शुक्रिया अब्दुल कादिर। शेरपा पुल पर पुलिस गाड़ियां जलाने और हमले का केस है। पुलिस ने मुलजिमान को अदालत पेश कर दिया है। अदालत ने मुलजिमान की शनाख्त परेड दरख्वास्त पर फैसला महफूज कर लिया है। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत के एडमिन जज अबर गुल खान ने समाअत की है। नुमान नूर से मजीद जानते हैं। नुमान, आगाह कीजिए। जी, इंसदाद दहशतगर्दी की खुसूसी अदालत ने शेरपा पुल पर पुलिस गाड़ियां जलाने और पुलिस पर हमला करने के केस में अहम पेशरफ सामने आई। अदालत में पुलिस ने मजीद 3 मुलजमान को गिरफ्तार करके शनाख्त परेड के लिए अदालत में दरख्वास्त दायर की, जिस पर अदालत ने मुलजमान अफजाल अजीम पाहट, हमजा अजीम पाहट और खालिद पाहट के शनाख्त परेड की दरख्वास्त पर फैसला महफूज कर लिया। इस हवाले से दौरान समाअत अदालत ने सत्कार किया कि तफ्तीशी अफसर बताएं इनको किधर से और क्यों गिरफ्तार किया है, जिस पर प्रोसिक्यूशन ने कहा कि मुलजमान ने शेरपा पुल पर पुलिस पर तशद्दुद किया, पुलिस गाड़ियां जलाई, जबकि मुलजमान इसमें रूपोश थे। अब मुलजमान को वारंट गिरफ्तारी लेकर गिरफ्तार किया है, जिस पर मुलजमान के वकील राना इंतजार ने कहा कि मुलजमान ने खाना में जलसा करने की दरख्वास्त DC ऑफिस को दायर की। जिस दिन नून लीग का जलसा लाहौर में था उसी दिन इन्होंने कार्रवाई मीटिंग की, जिसके बायस आज पुलिस ने इस पर कार्रवाई की है और PTI की इलेक्शन कैंपेन करने पर इन मुलजमान को गिरफ्तार किया है। अदालत मुलजमान को रिहा करने का हुक्म जारी करे। ठीक है नुमान, बहुत शुक्रिया। कि दूसरी जानिब स्मोक के हवाले से भी इक़दामात जारी हैं। स्मोक के तदारुक के लिए मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन का ऑपरेशन तेज़ है। 24 घंटों में 17 मकामात से मलबा हटाकर 15 मुकदमा दर्ज किए गए हैं। एंटी स्मोक ऑपरेशन अब तक 2423 तजावुज़ात को हटाया जा चुका है। तफसीलात के लिए बात करते हैं इमरान अकबर से। जी इमरान। जी बिल्कुल, स्मोक के तदारुक के लिए कॉर्पोरेशन की तरफ से ऑपरेशन किया जा रहा है। एडमिनिस्ट्रेटर एमसीआर राफिया हैदर की हिदायत पर चीफ ऑफिसर इकबाल फरीद समेत पूरी टीम फील्ड में मौजूद है। गुज़िश्ता 24 घंटों में 17 जगहों से मलबा हटा दिया गया है। 15 मुकदमा दर्ज करवाए गए हैं। सर्विसेज विंग ने 590 किलोमीटर नाके पर एंटी स्मोक स्प्रे कराया है, जबकि मिस्ट क्वीन और मिस्ट कैनन ने 1391 किलोमीटर में सड़कों पर एंटी स्मोक ऑपरेशन किया गया है, जिसमें एंटी स्मोक ऑपरेशन में अब तक 2423 तजावुज़ात को हटाया जा चुका है। 8,81,000 रुपये के जुर्माने और 1,362 नोटिस जारी किए गए हैं। 8,865 स्टीमर और पैनल जबकि चील गोश्त के 23 पॉइंट खत्म किए गए हैं। एडमिनिस्ट्रेटर एमसीआर राफिया हैदर का कहना है कि स्मोक के तदारुक को रगाही के लिए खसूसी मुहिम जारी है। इसी सिलसिले में शहरी स्मोक के बाइस बनने वाली गाड़ियों और फैक्ट्रियों की निशानदेही में मदद करें। शिकायत MCL जोनल और दफातर और सोशल मीडिया पर दर्ज करवाई जाए। जी, आपका बहुत शुक्रिया इमरान। स्मोक के तदारुक के लिए मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन की कार्रवाइयाँ जारी हैं। 24 घंटे में 17 मुकामात से मलबा हटाकर 15 मुकदमा दर्ज किए गए हैं। एंटी स्मोक ऑपरेशन में अब तक 2423 तजावुज़ात को हटाया जा चुका है। महकमा तहफ़्फ़ुज़ माहौल की कार्रवाइयाँ भी स्मोक की शिदत में कमी ना ला सकीं। एंटी स्मोक स्क्वाड्स के दिन रात छापों के खातिर खा नताइज बरामद नहीं हुए। शहरी कहते हैं बच्चे बीमार हो रहे हैं। फ़िज़ाई आलूदगी से TB जैसी बीमारी फैल रही है। अब्दुल कादिर की रिपोर्ट देखिए। महकमा तहफ़्फ़ुज़ माहौल पंजाब के एंटी स्मोक स्क्वाड्स की कार्रवाइयाँ, मगर लाहौर से स्मोक के गहरे साए छुट न सके। गुज़िश्ता 2 रोज में शुमाली लाहौर के मुख्तलिफ सनती इलाकों में 126 यूनिट्स की चेकिंग की गई। 25 यूनिट्स को सरबा मोहर भी किया गया। 3 यूनिट्स की भटियां मिसमार, जबकि 7 यूनिट मालिकान के खिलाफ मुकदमात दर्ज करवाए गए। 16 यूनिट्स को मामूली खिलाफ वर्जी पर वार्निंग देकर नोटिस जारी किए गए। सनती इलाकों के रिहायशियों का कहना है कि स्मोक की वजह से
गले, फेफड़ों और आंखों के अमराज लाहक हो रहे हैं। टीबी जैसी बीमारी भी लग रही है। बच्चे सबसे ज्यादा मुतासिर हैं। स्मोक दी वजह तो बच्चों गले खराब, खांसी, जुकाम, बीमारियां लग रही हैं। टीबी की बीमारी कोई लग रही है, तेरा हल है ही कोई नहीं। नुकसान तो बहुत है, टाइफाइड, हेपेटाइटिस, अपना छाती बच्चों की, ये धुएं की वजह से बहुत सारा नुकसान हो रहा है। लाहौर में महकमा माहौलियात के 8 एंटी स्मोक स्क्वाड्स को जिम्मेदारियां सौंपी गई हैं, जो स्मोक सीजन में रात दिन फैक्ट्रियों और सनती यूनिट्स की चेकिंग में मसरूफ हैं। ट्रैफिक पुलिस का धुआं छोड़ने वाली गाड़ियों के खिलाफ क्रैकडाउन जारी है। 10 रोज में 4311 गाड़ियों को थानों में बंद किया गया है। 10,000 से ज्यादा गाड़ियों को चालान टिकट जारी किए गए हैं। जैन अली की रिपोर्ट देखिए। ट्रैफिक पुलिस भी स्मोक के फैलाव की रोकथाम के लिए इन एक्शन, धुआं छोड़ने वाली गाड़ियों के खिलाफ क्रैकडाउन जारी। 10 रोज के दौरान 4311 गाड़ियों को थानों में बंद किया गया। 10,000 से ज्यादा गाड़ियों को चालान टिकट जारी किए गए। धुआं छोड़ने वाली गाड़ियों के 2-2 हजार रुपए के चालान काटे जा रहे हैं। क्रैकडाउन करने वाले ट्रैफिक के एहलकारों का कहना है कि सरकारी और नीम सरकारी मुलाजिमीन के खिलाफ भी बिला इम्तियाज कार्रवाई की जा रही है। जिस गाड़ी को थाने में बंद किया जाता है उसकी निगरानी भी की जाती है, ताकि कोई मुतल्लिका थाना बगैर सुपुर्दारी के गाड़ी न छोड़े। जो सरकारी हो या नीम सरकारी हो, इसमें कोई भी हम बिल्कुल भी कोई भी फर्क महसूस नहीं करते। जो भी गाड़ी धुआं देती है हम उसको 2,000 रुपये फाइन कर रहे हैं और उसका पासिंग और रूट कैंसलेशन के लिए दे रहे हैं, ताकि उसका पासिंग कैंसिल हो जाए और दोबारा वो पासिंग करवाए, अपना जो है पासिंग करवाने के बाद रोड पे आए। धुआं छोड़ने वाली गाड़ियों के ड्राइवर्स मुख्तलिफ हीले बहाने तराशने लगे। किसी ने नाकिस डीजल को धुएं का जिम्मेदार ठहराया तो कोई असल मालिकान पर जिम्मेदारी डालता रहा। मोबलाल पाइए ना, वो फिर कच्चा धुआं मार दिया, जिन्ना तक वो सड़ना है ना उन्हें वो बाई साफ हो जाएगी। इंजन पंप नोजला नवियां कराइयां ने दियां। इस गाड़ियों का कोई कसूर नहीं है। गाड़ी और मॉडल वाली गाड़ी है, इंजन नवा रखा हो तो उसका क्या कसूर है। उन पंपों से डीजल ही 2 नंबर मिले तो वो हम क्या कर सकते हैं। डीएसपी मॉडल टाउन को सुए आसल, डीएसपी सदर को ठोकर न्याज बेग, डीएसपी शाहदरा को रावी पुल और डीएसपी मुगलपुरा को हरबंसपुरा और मनावा में कार्रवाइयां करने की हिदायत जारी की गई। कैमरामैन नुमान एजाज के साथ जैन अली, लाहौर न्यूज़। गुलाब देवी टीचिंग हॉस्पिटल में स्मोक के खिलाफ आगाही वाक़ का इनेकाद। डॉक्टर्स, नर्सिस, पैरामेडिकल स्टाफ और तलबा की शिरकत। एमएस डॉक्टर हामिद हसन कहते हैं स्मोक के खिलाफ पूरी कुव्वत से खड़ा होना पड़ेगा। एहतियाती तदाबीर इख्तियार करके स्मोक से बच सकते हैं। मोहम्मद उसामा से मज़ीद तफसीलात जानते हैं। जी उसामा बताइए। इस वक्त मैं गुलाब देवी टीचिंग हॉस्पिटल में मौजूद हूँ, जहाँ पे अस्पताल इंतज़ामिया की जानिब से, डॉक्टर्स की जानिब से स्मोक के ख़िलाफ़ एक वॉक का एहतमाम किया गया, जिसमें डॉक्टर्स, नर्सिस, पैरामेडिकल स्टाफ और तलबा ने शिरकत की। इस वक्त मेरे साथ हॉस्पिटल के एमएस डॉक्टर हामिद हसन साहब मौजूद हैं। इस हवाले से उनसे बात करते हैं। सर, आप बताइएगा, स्मोक के हवाले से बताइएगा, और हुकूमत ने कुछ एहतियाती तदाबीर भी बताई हुई हैं, उस पर बात कीजिएगा। जी हाँ, स्मोग एक ऐसा मसला है जिसमें छोटे से छोटा बच्चा, नौज़ायदा बच्चे से लेके 100 साल तक की उम्र का जो शख्स है वो इससे मुतासिर है। हम पहले ये देखते थे कि फेफड़े की बीमारियां मौत का दुनिया में कुछ तीसरा हिस्सा है, तीसरे नंबर पे आती हैं, जिसकी वजह से ज़िंदगी को ख़तरा होता है। उस वक्त सिर्फ सिगरेट एक मैनेज थी। अब तो सूरत हाल ये है कि हर कोई, चाहे वो घर में बैठा है, पार्कों में सैर कर रहा है, अपने जॉब पे है, वो इस एनवायरनमेंट में सांस ले रहा है जो बहुत ज़्यादा पॉल्यूटेड है। ये सेहत के लिए ख़तरनाक है, ग्रोथ के लिए ख़तरनाक है, छोटे बच्चों की जहनी उसके लिए और लंग्स के प्रोडक्शन के लिए, इन सब चीज़ों के लिए ख़तरनाक है। अगर हम इंडिविजुअल लेवल पे, सोसाइटी के लेवल पे और गवर्नमेंट के लेवल पे सब मिलजुल के इसको ख़त्म करने के लिए काम नहीं करेंगे तो ये कम नहीं होगी, ये बढ़ती जाएगी और हमें इसके नुकसानात को भुगतना पड़ेगा। सर, ये बताइए, लोग किस से एहतियाती तदाबीर कैसे इख्तियार करें और किस किस काम से परहेज़ करें? इसमें सबसे ज़्यादा बचाना तो ज़रूरी है कि किसी तरह आग मत लगाएं, धुएँ को मत फैलाएं। आपके पास गाड़ी है, मोटरसाइकिल है, उसे धुआं नहीं देना चाहिए। आपको बिल्कुल गैर ज़रूरी तौर पर बाहर नहीं निकलना चाहिए। अगर जाएँ तो रश वाले एरियाज़ में नहीं जाना चाहिए। अगर आपको कभी ये मजबूरी हो जाए कि ऐसे एरियाज़ में जाना है तो आपको मास्क के बगैर नहीं जाना चाहिए। अभी तो मौसम सरमा का बिल्कुल आगाज़ है, लेकिन स्मोक की वजह से शहर लाहौर की फ़ज़ा आलूदा तरीन हो चुकी है और आज भी शहर लाहौर दुनिया के आलूदा तरीन शहरों में शुमार होता है। तो इसी हवाले से पंजाब हुकूमत ने भी 1 महीने के लिए सूबा भर में स्मोक इमरजेंसी नाफिज की हुई है और शहरियों से अपील की जा रही है कि बाहर निकलते वक्त चेहरों पर मास्क लगाएँ और चश्मे का इस्तेमाल करें। जी उसामा। कमिश्नर लाहौर की हिदायत पर एलडीए का नादहिंदगान के खिलाफ क्रैकडाउन है। रायवेंड रोड पर 196 केनाल पर मुश्तमिल कंट्री क्लब रोज़ा ब्लांका को नोटिस और रोज़ा ब्लांका कंट्री क्लब कमर्शलाइजेशन फीस की मद में एलडीए का 1 अरब 41 करोड़ रुपए का नादहिंदा है। कंट्री क्लब को 5 रोज़ में वाजिबात की अदायगी करने की हिदायत की गई है। तफसीलात के लिए बात करते हैं नुमाइंदा लाहौर न्यूज़ ज़ैनुल आबिदीन से। जी ज़ैन।
196 کنال پر مشتمل معروف کنٹری کلب ہے یہ روزا بلانکا، جو کہ عرصہ دراز سے کمرشل فیس کی مد میں ایل ڈی اے کا نام دہندہ ہے۔ اس سے قبل بھی ایل ڈی اے کی طرف سے اس روزا بلانکا کنٹری کلب کو سرب مہر کیا گیا اور نوٹسز بھی جاری کیے گئے، مگر اس کلب کی انتظامیہ کی طرف سے جو کمرشل فیس ہے وہ ادا نہیں کی گئی۔ اب کمشنر لاہور اور ڈی جی ایل ڈی اے کی ہدایت پر ایل ڈی اے نے نادہندگان کے خلاف شکنجہ مزید سخت کرتے ہوئے یہ کنٹری کلب روزا بلانکا کو نوٹس جاری کر دیا ہے۔ اس کلب کے ذمے کمرشلائزیشن فیس کی مد میں 1 ارب 41 کروڑ روپے ابھی تک واجب الادا ہیں۔ کمرشل فیس کی عدم ادائیگی پر یہ معروف کنٹری کلب کو نوٹس جاری کیا گیا ہے اور اس نوٹس میں ہدایت کی گئی ہے کہ 5 روز میں واجبات کی ادائیگی کو یقینی بنایا جائے۔ اس سے قبل عدالتی احکامات کے باوجود بھی نجی کلب انتظامیہ اور مالکان کوئی فیس جمع نہیں کروا سکے تھے، تو عدم ادائیگی پر اس کو نہ صرف سرب مہر کیا گیا تھا، اب یہ فیصلہ کیا گیا ہے کہ اگر کمرشل فیس کی ادائیگی نہیں کی جاتی تو اس پراپرٹی کی خرید و فروخت پر بھی قدغن لگا دیا جائے گا۔ جو نوٹس جاری کیا گیا ہے اس کا متن یہ ہے کہ عدم ادائیگی کی صورت میں ایل ڈی اے کمرشل استعمال بند کرنے اور نادہندگان پر مقدمہ درج کروانے کا حق محفوظ رکھتا ہے۔ روزا بلانکا میں بکنگ کرانے والے افراد خود اپنے نقصان کے ذمہ دار ہوں گے۔ ایل ڈی اے کے شعبہ ٹاؤن پلاننگ زون 5 کی جانب سے یہ نوٹس جاری کیا گیا ہے۔ ٹھیک ہے زین، بہت شکریہ۔ آئی جی پنجاب کی ہدایت پر ڈولفن کے جوانوں کے لیے فیزیو تھراپی سینٹر قائم، فیزیو تھراپی کلینک والٹن ہیڈ کوارٹر میں آپریشنل کر دیا گیا۔ ایس پی ڈولفن زہیب رانجھا کے مطابق فیزیو تھراپی سے آسٹروپروسس اور دیگر جسمانی اعضاء کی تکالیف کو دور کیا جا سکتا ہے۔ شاہزیب شہزاد سے مزید جانتے ہیں۔ جی شاہزیب، آگاہ کیجیے۔ آپ کا بہت شکریہ شاہزیب۔ بڑھتی مہنگائی نے غریب عوام کو چکرا کر رکھ دیا۔ پیاز 150، ٹماٹر 180، لہسن 650، ادرک 870 روپے کلو میں فروخت۔ کیلا درجہ اول 160، درجہ دوم 120 روپے فی درجن میں دستیاب ہے۔ مرغی کا گوشت 7 روپے سستا، فی کلو قیمت 470 روپے ہو گئی ہے۔ تفصیلات جانتے ہیں عبدالقادر سے۔ عبدالقادر، آگاہ کیجیے۔ آج مہنگائی کے حوالے سے بات کی جائے، سبزیاں، پھل، برائلر، انڈے جن کے روزانہ سرکاری نقطہ جاری کیے جاتے ہیں، ان کی قیمتیں جو ہیں وہ عوامی قوت خرید سے باہر ہونے لگی ہیں۔ آج سبزیوں کی ریٹ میں 4 سبزیاں مہنگی کی گئی ہیں، جس میں ٹماٹر 20 روپے مہنگا کر کے 140 روپے میں کر کیا گیا، لیکن مارکیٹ میں ٹماٹر جو ہے 170 روپے فی کلو تک فروخت کیا جا رہا ہے۔ 180 سے 170 روپے تک ٹماٹر فروخت کیا جا رہا ہے۔ اسی طرح پیاز 150 روپے فی کلو تک فروخت کیا جا رہا ہے، جبکہ لیمو کی قیمت میں 5 روپے کا اضافہ کیا گیا، 85 روپے میں کر کی گئی، 120 روپے فی کلو تک لیمو فروخت کیا جا رہا ہے۔ آلو جو سب سے سستا سمجھا جاتا ہے اس کی قیمت میں بھی 9 روپے کا اضافہ کیا گیا، اور سرکاری ریٹ میں شوگر فری آلو جو ہے وہ 105 روپے میں کر کیا گیا، لیکن مارکیٹ میں 130 روپے فی کلو تک شوگر فری آلو فروخت کیا جا رہا ہے۔ ہمارے ساتھ ایک شہری موجود ہے، ان سے بات کرتے ہیں۔ جی آپ بتائیے گا کہ ہر چیز مہنگی ہو رہی ہے، ٹماٹر 180 سے 170 تک پہنچ چکے ہیں، پیاز 150 روپے، کیا کہیں گے؟ پیاز ہماری ہر سبزی جو ہے نا، پٹرول سے لے کر انڈے وغیرہ، مرغی کا گوشت اور سبزی وغیرہ ہماری پہنچ سے اتنی دور ہو گئی ہے کہ ہم اسے خرید نہیں سکتے۔ اس لیے مہنگائی 3 سال سے مہنگائی اتنی زیادہ ہو گئی ہے کہ ہماری انکم بھی نہیں ہے، اور اتنی زیادہ، اور مہنگائی اتنی زیادہ ہے۔ آلو جو ہوتے تھے سب سے سستی سبزی آلو سمجھا جاتا تھا، جو ابھی 150 تک پہنچ گیا ہے۔ 130 والا میٹھا آلو پہنچ گیا، اور جو شوگر فری ہے وہ 150 تک پہنچ گیا ہے۔ پہلے ہمارا جو خرچہ ہوتا تھا سبزی وغیرہ اور گوشت لے کرنا تقریباً 6، 7، 8 ہزار میں ہو جاتا تھا، اب تو یہ 20 سے بھی اوپر چلا گیا۔ اب ہم کہاں سے لائیں؟ یہ حکومت ہماری کو چاہیے کہ ان چیزوں پہ کنٹرول کرے اور شہریوں کو تحفظ دے تاکہ وہ اپنی روزگاری زندگی گزار سکیں۔ ہاں جی بالکل، آپ نے جو ہے وہ شہری کی گفتگو سنی۔ ان کا کہنا ہے کہ مہنگائی کی وجہ سے اخراجات جو ہے مسلسل بڑھتے جا رہے ہیں، جس کی وجہ سے عام آدمی کا گزارا مشکل سے مشکل تر ہوتا جا رہا ہے۔ سستی اور سادہ سبزیاں خریدنا بھی اب شہریوں کے لیے آسان نہیں رہا۔ جی ٹھیک ہے، بہت شکریہ عبدالقادر۔ اشیاء ضروریہ کی قیمتوں میں مسلسل اضافہ، شہریوں کو 2 وقت کی روٹی کے دالے پڑ گئے۔ آٹا، چاول، چینی اور گھی کی قیمتوں میں پھر اضافہ، غریب تو غریب، مڈل کلاس طبقہ بھی پس کر رہ گیا۔ محمد اسامہ کی رپورٹ دیکھیں۔
महंगाई महंगाई और महंगाई, आवाम की एक ही दुहाई। पेट भरने की बुनियादी अशियाए ज़रूरिया की महंगाई का तसलसल जारी। आटा, चावल और घी फिर महंगाई की लपेट में। 20 किलो आटे का थैला 50 रुपए महंगा, कीमत 2700 रुपए तक पहुँच गई। पुराना चावल 20 रुपए महंगा, फी किलो कीमत 370 रुपए हो गई। दर्जा सोम के घी और ऑयल के 20 किलोग्राम के कार्टन में 300 रुपए का इजाफा। चीनी की फी किलो कीमत 140 रुपए तक जा पहुंची। गंदम की कीमत में 300 रुपए फी मन इजाफा हो गया। कीमत 4400 रुपए फी मन से बढ़कर 4700 रुपए मन हो गई। शहरी फट पड़े, कहते हैं महंगाई ने मार दिया, बच्चों को 2 वक्त की रोटी नहीं खिला सकते। जिसकी सैलरी 15-20 हजार रुपए है, उसका घर का खर्चा जो है वो 30 हजार रुपए है, वो 10 हजार रुपए कहाँ से लेके आएगा। महंगाई ने तो साथ तोड़ के भाईजान इंसान को जो है ना, वो गरीब आदमी तो बिल्कुल ही मार दिया है, कुछ ये बिलों ने मार दिया है। शहरियों ने हुकूमत और आला हुकाम से अशियाए ज़रूरिया की कीमतों में फौरी कमी का मुतालबा कर दिया। गवर्नर पंजाब अलीगौर रहमान से नेशनल सिक्योरिटी वर्कशॉप के वफ्द की मुलाकात हुई है। गवर्नर पंजाब ने कहा है, आप लोगों को गवर्नर हाउस में खुशामदीद कहता हूँ। किसी भी मुल्क की तरक्की में पॉलिसियों का तसलसल बहुत अहम है। मोहम्मद यासीन से मजीद जानते हैं। यासीन, आगाह कीजिए। जी, गवर्नर पंजाब अलीगौर रहमान से नेशनल डिफेंस की यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद के ज़ेर तमाम 25वीं नेशनल सिक्योरिटी वर्कशॉप के शुरा ने गवर्नर हाउस में मुलाकात की है। वफ्द की क़यादत डायरेक्टर जनरल इंस्टीट्यूट फॉर स्ट्रेटेजिक स्टडीज रिसर्च एंड एनालिसिस ISSR के मेजर जनरल रजा एजाज ने की है। इस मौके पर गवर्नर पंजाब ने कहा कि आप सब लोगों को गवर्नर हाउस की तरीही इमारत में खुश आमदीद कहता हूँ। मुझे खुशी है कि इस तरबीती वर्कशॉप में मतनू पस मंजर तलक रखने वाले अफराद, सेनेटर्स, मेंबरान कौमी असम्बली, मिलिट्री और सिविल अफसरान शामिल हैं। मुझे उम्मीद है कि इसकी कोर्स के से आपको मुल्क जो स्ट्रेटेजिक और समाजी महरक़ात समझने के साथ साथ मुल्क के दरपेश मुश्किलात जानने का मौका भी मिला होगा। उन्होंने कहा कि किसी भी मुल्क की तरक्की में पॉलिसियों की तसलसल बहुत अहम है। उन्होंने कहा कि हुकूमत खास तौर पर इलाकाई तजारत, सरमायाकारी, इक़्तिसादी राब्ता की बेहतर बनाने पर तवज्जो दे रही है। उन्होंने कहा कि माजी करीब में फॉर डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट बढ़ाने के लिए स्पेशल इन्वेस्टमेंट फैसिलिटेशन काउंसिल का क़याम अमल में लाया गया है। उन्होंने कहा कि नफरतें, मनफी सोच और रवैयों को ख़त्म करके मुस्बत सिमत बनाने से ही मुल्क तरक्की करेगा। जी ठीक है यासीन, बहुत शुक्रिया। LDA सिटी हाउसिंग स्कीम मंसूबे में बड़ी पेशरफ्त। LDA सिटी का अलॉटीज़ को प्लाटों के कब्जे देने का फैसला। कमिश्नर लाहौर और DG LDA मोहम्मद अली रंधावा की ज़ेर सदारत इजलास हुआ। LDA सिटी और LDA एवेन्यू 1 में जारी तरक्याती कामों पर ब्रीफिंग दी गई है। अहम इजलास के हवाले से आपको अपडेट कर रहे हैं कि LDA सिटी का अलॉटीज़ को प्लाटों का कब्जा देने का फैसला है। कमिश्नर लाहौर और DG LDA मोहम्मद अली रंधावा की ज़ेर सदारत इजलास हुआ है। तफसीलात के लिए बात करते हैं नुमाइंदा लाहौर न्यूज़ ज़ैनुल आबिदीन से। जी ज़ैन, 2 साल कबल LDA सिटी हाउसिंग स्कीम के जना सेक्टर की जो कुरानंदाजी थी उसका अमल तो मुकम्मल कर लिया गया था, लेकिन कुरानंदाजी के बाद जो ये अलॉटिंग है उनको प्लॉटों का अभी तक कब्जा नहीं मिल सका था। तो अब फिरोजपुर रोड पर वाक़े LDA सिटी हाउसिंग स्कीम मंसूबे में ये अहम पेशरफ्त सामने आई है कि LDA इंतजामिया ने दिसंबर के आगाज़ में ही जना सेक्टर के जो प्लॉट हैं उनका कब्जा अलॉटियों को देने का फैसला किया है। ये कमिश्नर लाहौर और DG LDA मोहम्मद अली रंधावा की ज़ेर सदारत LDA के मुख्तलिफ अमूर बारे जो इजलास हुआ उसमें इस अमल का फैसला किया गया कि LDA सिटी के C ब्लॉक की पोजेशन के अमल का आगाज़ दिसंबर के पहले हफ्ते में कर दिया जाएगा और C ब्लॉक के बाद दीगर ब्लॉक्स को भी मरहलावार पोजेशन दिया जाएगा। इस मौका पर कमिश्नर लाहौर और DG LDA ने डायरेक्टर LDA सिटी से दीगर ब्लॉक्स का मरहलावार पोजेशन देने का तफसीली प्लान भी तलब कर लिया, जबकि LDA सिटी में बिजली के कनेक्शन और दीगर सहूलियात की फराहमी में पेशरफ्त के बारे में भी ब्रीफिंग दी गई। इजलास में डायरेक्टर LDA एवेन्यू 1 में ने एवेन्यू 1 हाउसिंग स्कीम और मोहलनवाल में जारी तरक्याती कामों पर ब्रीफिंग दी। डायरेक्टर हाउसिंग 10 ने LDA की अहम प्रॉपर्टीज की बेहतर मार्केटिंग के बारे में भी कमिश्नर लाहौर और DG LDA को आगाह किया। आपका शुक्रिया ज़ैन। गैर कानूनी तारिकीन वतन के इंखला का अमल है और पुलिस की जानिब से घर घर तलाशी का सिलसिला जारी है। गुज़िश्ता 2 रोज़ के दौरान 500 से ज़ायद गैर कानूनी तारिकीन वतन को हिरासत में ले लिया गया है। रिपोर्ट कर रहे हैं मुदस्सिर हुसैन।
गैर कानूनी तारिकीन वतन की वापसी के लिए पुलिस का ऑपरेशन जारी। गुज़िश्ता 2 रोज के दौरान 500 से जायद गैर कानूनी तारिकीन वतन को हिरासत में लिया गया। नादरा और FIA की टीम उनके क्वाइफ चेक कर रहे हैं। स्कैनिंग और मैपिंग का अमल भी जारी है। प्रोसेस मुकम्मल होने के बाद उनको अपने मुमालिक में भेजा जाएगा। पंजाब पुलिस और हसास इदारों के अहलकार मुख्तलिफ आबादियों में जाकर स्कैनिंग कर रहे हैं। टीमों को रेंजर्स और पुलिस की सिक्योरिटी मुयस्सर है। गैर कानूनी अफराद को 31 अक्टूबर तक अज खुद मुल्क छोड़ने का कहा गया था। पकड़े जाने वाले गैर कानूनी गैर मुल्की अफराद के लिए लाहौर समेत मुख्तलिफ अजला में होल्डिंग एरियाज और आर्जी कैंप्स कायम हैं। इन कैंपों में रिहाइश, खाने पीने, तिब्बी इमदाद और सिक्योरिटी के इंतजामात किए गए हैं। कैंपों में मर्दों और औरतों के लिए अलहदा रिहाइश गाहें मौजूद हैं। गैर कानूनी तारिकीन वतन की पंजाब से वापसी के लिए हुकूमत ने 2 दिन जुम्मा और हफ्ता मुख्तस किए हैं। तजावज़ात माफिया इदारों के रडार पर आ गया। LDA का पाइन एवेन्यू, जोहर टाउन समेत दीगर इलाकों में ऑपरेशन। 30 दर्जन से ज़ायद इमलाक मिस्मार और सरबा मोहर कर दी गई। आवाम के लिए जहमत, तजावज़ात माफिया LDA के रडार पर। कमिश्नर लाहौर व DG LDA मोहम्मद अली रंधावा की हिदायत पर LDA टीमों ने जोहर टाउन, पाइन एवेन्यू, BOR और मुल्हिका स्कीमों में कार्रवाई की। मौजा अमीरपुर में गैर कानूनी चिकन शॉप, मार्बल पेंट शॉप को मिसमार कर दिया गया। चीफ टाउन प्लानर 2 अजहर अली की ज़ेर निगरानी डायरेक्टर टाउन प्लानिंग 4 ने ऑपरेशन किया। टीमों ने 3 दर्जन से जायद गैर कानूनी तामीरात, कमर्शल अमलाक सरबा मोहर व मिसमार कर दी। मिसमार व सील अमलाक को मुतअद्दिद बार नोटिस जारी किए गए। DC लाहौर व एडमिनिस्ट्रेटर MCL राफिया हैदर का शहरबार में इंसदाद तजावज़ात कार्रवाइयाँ तेज करने का हुक्म। एडमिनिस्ट्रेटर MCL राफिया हैदर का कहना है कि 24 घंटों के दौरान 112 तजावज़ात हटाई गईं। रावी जोन में 25, दातागंज बख्श में 50 तजावज़ात के खिलाफ ऑपरेशन किया गया। गुलबर्ग जोन में 13, अल्लामा इकबाल 25 और वाहगा में 8 तजावज़ात हटाई गईं। राफिया हैदर का मजीद कहना है कि हटाई गई तजावज़ात वापस लगने पर मुतल्लिका अफसरान के खिलाफ कार्रवाई होगी। तजावज़ात शहरियों के लिए ज़हनी अजियत का बायस बनती हैं।